This conference. Lots of questions are going to be asked and that is going to be purely एक lottery होगी. Lottery समझता है ना पर? तो इस प्रकार का. Am I audible? Am I visible? Hello. Yes, sir. ठीक है बच्चों. चलो जी. So Karthik, this is known as isolation of elements. आपकी different books में अगर उसका दिल किया तो वो इसको metallurgy के नाम से भी बोल सकता है. That's the same thing with it. Metallurgy is the study of basically metals. We will not be discussing non-metals. Alloys are also going to be little bit studied. People who study or work with metals are known as metallurgists. Ash, it is one of the most important branches of engineering as modern application. Nowadays require a material with high strength and low weight with other factors. Maybe आप अपनी नई नई गाड़ियां और रॉकेट्स आप लॉन्च कर रहे हैं, maybe आप टीवी और आप कंप्यूटर्स बना रहे हैं. It primarily refers to commercial. You understand? Commercial and laboratory में different, where we will be producing lots in terms of quantity. Hello Anya, कैसे है बेटे? So I have done my homework. क्या हाल है बेटिया? So आपको थोड़ा सा इसके ऊपर in terms of knowledge के एंगल से ना इस चैप्टर के ऊपर काम करना होगा. टॉपिक विल बी वेरी वेरी इजी एंड रिवार्डिंग. अनलाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको बहुत बार पढ़ना पड़ता है, इसको 2 या 3 बार पढ़ने से ये आपका टॉपिक बिल्कुल तैयार हो जाएगा. So this is wherever I think that you will read, I will read only. For example, atmosphere, hydrosphere, lithosphere. I really wish you people give it a read. Although it will be easy, but you should not leave it. We never know core mental crust में कहाँ से उसका क्वेश्चन बनाने का दिल पड़ सकता है. ठीक, easy topic आपको दिया है. Similarly, the igneous, the sedimentary, and the metamorphic rock and different zones of lithosphere, sidro, and intermediate, and the lithophil that you people will be reading. मेरा काम अभी शुरू होगा. Rather यहाँ से शुरू होता है. Modes of occurrence of metals. Native state. कभी कभी लॉटरी लगती है तो हमें मेटल नेटिव स्टेट में मतलब प्योर फॉर्म में मिल जाता है. The elements which have very low reactivity, gold, silver, even mercury, but mercury is a liquid metal, so हम यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं nuggets में, and have little or no affinity for oxygen, air, moisture, carbon dioxide, or other non-metals like sulfur, oxygen, halogen, occurs in the free state called native state. For example, ये non-metals हैं तो इस चैप्टर में नहीं आएंगे, but we will be focusing on gold, silver, platinum. Right? ये कभी कभी ऐसे लॉटरी लगती है कि हमें ये फ्री फॉर्म में बिल्कुल ऐसे का ऐसे पत्थर के रूप में ये मिल जाता है. Combined state, the elements which are reactive and have tendency to combine with oxygen or air, moisture, etc., right? They are going to occur in the combined state. Rather, this chapter will be dedicated to these type of elements which are going to be found in the combined ore. The ores may be divided into 4 types. Extremely important. मैंने अपनी तरफ से एक जगह पे समरी बनाने की कोशिश की है. आप लोगों को इसको slowly over a period of time याद करना है. You will be getting direct question based upon that. Direct, indirect की तो बात ही नहीं करते हैं. These contains metal in free state. जैसे बात की silver, gold, platinum, mercury, etc. These are found usually with rock or alluvial materials like mitti, sand, etc. Sometimes even lumps of pure metals are also found. These are known as nuggets. For example, iron is found in free state as meteorite, which has around 20 to 30% nickel.
अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इट्स अराउंड 3 और 4 days अगो एक इंसान के घर के ऊपर पूरे का पूरा एक मीटेराइट आके गिरता है, तो उसको 4 या 6 किलो का एक उसको नगेट मिलता है, एंड दैट वाज कॉस्टिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स रदर. सो दैट इज कभी कभी हमें इस प्रकार से भी मिल सकते हैं. अब अर्श, इसलिए आपको बोला था बेटा कि इस चैप्टर में ज्यादा ध्यान करना है. यू विल बी पर डे, वन डे, वन टाइप ऑफ ओर बेटे. फॉर एग्जाम्पल मैंने जो समरी बनाई है, सल्फराइज्ड और आर्सेनिकल, ऑक्सीडाइज्ड और कार्बोनेट्स और नाइट्रेट, सल्फेट्स एंड सो ऑन. एक दिन में याद करेगा तो फायदा नहीं होगा, तो एक दिन में एक को पढ़ना है और इसको याद करना है धीरे धीरे. The best way is absorb it slowly, start practicing the question come back and master it. Okay. For example, sulfurized ore or arsenical ore, galena, PbS, zinc, ZnS, zinc blending, mercury, cinnabar, right, HTS, argentite, Ag2S, ruby silver, silver sulfide, antimony sulfide. क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, which of the following contain two metals? For example, copper pyrite and the ruby silver contains silver, antimony, copper and iron respectively. Iron pyrite, FeS2, kupfer nickel, nickel arsenide, copper gallons, copper sulfide. I'm again writing, these are important and questions घुमाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे. थोड़े समय में हम आपसे क्वेश्चन पूछने शुरू हो जाएंगे. Which of the following is a sulfur ore? Which of the following is going to be purified with the froth flotation process? अभी यूज करता हूँ froth flotation, सल्फराइज्ड ore के लिए यूज होता है. दमन, oxidized ore. These are present as oxide, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट एक्सेट्रा. इनमें से भी बेटे ऑक्साइड, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनोटाइट. आई हैव सीन इवन जेई एडवांस्ड के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे बनते हुए. आयरन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट अराउंड यू. तो याद करने का तरीका, H और M में बेदी कौन पहले आता है? H. आयरन 2 और आयरन 3 में आयरन 2 पहले आएगा और Fe3O4 आयरन 3 बाद में आएगा. बेटे डायरेक्टली क्वेश्चन है, which of the following is hematite and magnetite respectively, right? Limonotite is less important but you should not leave it. Bauxite, corundum, diaspore, chromite, iron and chromium oxide, chromiocur, tin stone. आज के दिन में क्वेश्चन पूछ लूंगा. SnO2, tin stone, chrysoberyl, beryllium oxide, Al2O3, ruby copper, copper oxide, pyrolusite, MnO2. ये डी ब्लॉक में KMnO4 बनाने के काम में आएगा. Zincite, the white pigment, Zn oxide, rutile, titanium oxide. Which of the following is ore of 2 oxide? Iron and titanium ilmenite. जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, वही क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं. कार्बोनेट्स, मैग्नेसाइट, limestone, dolomite is the ore of 2 carbonate. The calamine, lactocalamine, आप क्रीम्स में इसको यूज करते हैं. It has a soothing action on the skin. Zinc carbonate, malachite, copper carbonate, copper hydroxide. Azurite, सिर्फ empirical formula is different. Copper carbonate, copper hydroxide, 1:1. Here the copper carbonate, copper hydroxide, 2:1 की ratio. 2:1, yes sir. The empirical formula. Cerussite,
lead carbonate, siderite iron carbonate, all extremely important. rather याद रखना, ये आपने अपने नीट और जेई से पहले पढ़ के जाना है, तो उस दिन सुबह ये चीजें लिस्ट बनाते रहो क्या पढ़ के जाना है. नाइट्रेट, चिली, सोडियम नाइट्रेट, इंडियन सॉल्ट पीटर, राइट, इंडियन सॉल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट को बोला जाता है. सल्फेट्स, which of the following is Epsom salt? Baryite, barium sulfate, gypsum, calcium sulfate, 2 water molecules. Clover salt is decahydrate or heptahydrate. Angelasite, these are less important, मतलब रटना नहीं है, ठीक. मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा इनके ऊपर, सो मिल गया तो वापस आ जाना, अदरवाइज बाकियों के ऊपर तो मैं जोर लगा. These are again less important, right? But yes, you should have an idea. Mica, अगर आपको याद हो तो इसको हिंदी में अब्रक कहते हैं. पुरानी वाली प्रेस, उसके अंदर जो एलिमेंट होता था वो एक चकमकाती हुई चीज होती है, so that is अब्रक. Fluorapatite, the softest substance, आपको याद होगा शायद टेल्कम पाउडर. एस्बेस्टॉस, इसकी शीट्स बनती हैं, कार्सिनोजेनिक, ये याद नहीं करते हैं. फॉस्फेट्स एंड सिलिकोस लेस इंपॉर्टेंट. मैंने अभी तक को क्वेश्चन नहीं देखा, बट हाँ यू शुड कीप इट इन माइंड. पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ऐसे हैं इसके ऊपर. हेलाइड और कॉमन सॉल्ट. कार्नेलाइट बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है. हॉर्न सिल्वर, फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट, all important. So with your own hand, यहाँ पे मत लिखे रहने देना, किसी ऐसी जगह पे लिखना, preferably NCERT, that you are going to visit it again and again. So my job is just to bring the information in front of you. Your job is not to lose mark and make your career when the time comes, but it will be a rewarding thing, right? So what we have discussed ores, नेटिव एंड कंबाइंड स्टेट में आपको डिफरेंट प्रकार से ये दी गई है. इंदर क्लास 9th से ये काम चलता है बेटे. द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स. ओर से जहां पे हम इकोनॉमिक लेके आ सके, इकोनॉमिक्स स्पेल क्या हो गए, स्पेलिंग बोलना जरा, इकोनॉमिक्स. इज इट ओके? Yes, sir. तो स्पेल भूल जाते हैं तो अपने आप ही लिखते हो तो याद आते हैं. जहां से हम प्रॉफिट बुक कर सके, सो दैट इज गोइंग टू बी द ओर्स. बाकी मिनरल्स तो सभी हैं, इवन मिट्टी, रेता इज मिनरल. सो मिनरल से हम प्रॉफिटेबली कोई एलिमेंट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, बट ओर्स में से आप प्रॉफिटेबली कोई चीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ये रतन याद है आपको बेटे? सो रतन आगे चलते हैं. Yes, sir. और चैप्टर की नबज पकड़ते हैं. रतन इसके नोट्स मत बनाना बेटे, मैं खुद बता दूंगा क्या नोट्स चाहिए. आपका बैकग्राउंड चाहिए है मुझे एनसीईआरटी में, कुछ खास चीजें होंगी वो मैं बता दूंगा बेटे, और मैं थोड़ा एनसीईआरटी से ज्यादा बात करूंगा. मेटलर्जी. व्हाट इज मेटलर्जी? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग metals from their ores is known as metallurgy. Some common steps involved in metallurgical operation are crushing and grinding of the ore, surface area बढ़ाया जाएगा, concentration और benefaction of the ore. Of course, तुम metals लोगे कहाँ से? धरती से. धरती में मिट्टी भी होगी, तो आपको उसको धोना पड़ेगा.
और उसमें से काम की चीज को कॉन्सेंट्रेट करेंगे और जो काम की नहीं है उसको निकाल देंगे। आप इमेजिन कीजिए आपने दाल खाई है, चावल खाए हैं, तो आपने उसमें से इम्प्योरिटीज को बाहर निकाला है। वर्किंग ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड ओर, you can say this will be the heart of metallurgy। यहाँ पे हम केमिस्ट्री यूज करेंगे। Oxidation and reduction, these two processes will be used here। The main part चैप्टर का प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जो थर्ड पार्ट से हमें मेटल मिलेगा, से वो कभी 70% होगा, कभी 80% होगा, कभी 10% होगा, कभी 95% होगा। तो उसको क्लोज टू 99% गोल्ड और प्लैटिनम को क्लोज टू 100% बनाना होगा। हमने कोई आपके सर्किट्स बनाने हैं तो उसमें गैलियम इंडियम यूज करना है, तो हम उसको 100% भी नहीं, हम उसको ppm लेवल तक उसको प्योर करेंगे, मतलब उसमें से इम्प्योरिटी पूरी निकाल देंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक होगा, प्यूरिफिकेशन। तो अब हम एक एक करके चीजों को शुरू कर रहे हैं। मैं पहला लेके आ रहा हूँ, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, राइट। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में बिल्कुल नोट्स नहीं बनाना, इसको नॉलेज के लिए बस पढ़ना है। द ओर आर ब्रोकन टू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ क्रशर और ग्राइंडर। जैसे आपके पास मिक्सी है घर में, वैसे ही बड़े बड़े ग्राइंडर्स हैं। These pieces are then reduced to fine powder with the help of ball mill or stamp mill। This process is known as pulverization। उसको पोरस बनाया गया है। पल्वराइजेशन शायद आप लोगों को याद हो, आपने अपने घर का लेंटर या छत पड़ती देखी हो, या पड़ोस की कोई छत पड़ती देखी हो, तो एक मशीन होती है जो घूमती है, उसके अंदर जैसे मार्बल्स हैं, बड़े बड़े स्टील की बॉल्स डाल दी जाती है और ओर डाल दी जाती है। तो जब वो घूमती है तो स्टील की बॉल ऊपर से नीचे उसी के अंदर गिरती है और वो धीरे धीरे करके जो ओर के बड़े बड़े पत्थर हैं उनको छोटा छोटा करती रहती है। दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, नॉट मोर देन दैट आई नीड इट। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर सेकेंड प्रोसेस में घुसे हैं। As we said that we will be discussing these 4 points, concentration or benefaction of the ore, second point में हम आ गए। It is also known as benefaction, the process of removal of unwanted impurity, इसको बोलते हैं gang। The impurities is gang from the ore is called ore concentration, dressing or benefaction। The powdered ore is concentrated by one of the following method. Important. What is gang? Gang is known as impurities। impurity। ये impurity चोरों के जैसे छुप के बैठी होगी, ये आसानी से दिखेगी नहीं। हम इसको किसी तरीके से हम इसको मोल्टन फॉर्म में लेके आने वाले। मैं इसको रिझाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए इसमें जानबूझ के कोई चीज डाल दूंगा, दैट इज फ्लक्स डालूंगा। जैसे फ्लक्स इसको बुलाएगी कि तू बाहर आ जा। जब फ्लक्स गैंग्यू इम्प्योरिटी जो कि अंदर होगी उसके साथ कंबाइन कर जाएगी, ये एक मोल्टन फॉर्म में आ जाएगी बेटे। और मोल्टन फॉर्म का मतलब क्या है, वो अलग फिजिकल स्टेट में आ जाएगी, हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। नॉर्मली मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो अगर मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा होगी, हम किसी बर्तन में मेटल और इम्प्योरिटी को अलग कर रहे हैं, तो जैसे आपने अपने दूध के अंदर मलाई देखी होगी, फैट देखा होगा, फैट ऊपर आ जाता है और मिल्क नीचे रह जाता है, हम फैट को अलग कर देते हैं, उसके डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। ऐसे ही स्लैग को अलग करके, क्योंकि ये ऊपर रहती है, इसको अलग कर लिया जाता है। और स्लैग भी वेस्ट नहीं है, हम इसको अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। हम इसको कभी सड़कें बिछाने के लिए यूज करते हैं, कभी इससे बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करते हैं। सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू यूज। फॉर एग्जाम्पल, वी विल बी डिस्कसिंग एक इंपॉर्टेंट आपसे प्रोसेस डिस्कस की जाएगी, दैट इज अ ब्लास्ट फर्नेस।
ये देखिए, दिस इज द मोल्टन आयरन, नीचे रहेगा, राइट, ये आयरन नीचे रहेगा, ऊपर हमारा मोल्टन स्लैग होगा। स्लैग को अलग फॉर्म में ले लिया जाएगा और द आयरन को अलग फॉर्म में लिया जाएगा। ये जरा थोड़ा सा चेंज होगा, आयरन इधर होगा और मोल्टन स्लैग ये पर्पल कलर की लेयर में रहेगा, राइट सर। हम इसको आराम से अभी डिस्कस करते हैं, थोड़ा समय लगेगा बट यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। तो लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट वेयर वी वर देयर। बट हाँ, इस चैप्टर को गोल्ड माइन लेना, गोल्ड माइन की जगह पे मार्क्स माइन लगा देना। तो ग्रेविटी सेपरेशन, लेविगेशन भी बोलते हैं। This method is used when the ore particles are heavier than the mitti or rocky gangue particle. The powdered ore is fed into a stream of running water when the lighter impurities are washed away and the heavier ore particles are left behind. इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, आपको समझ आ गया। मैंने ओर को धो दिया, जो भारी पार्टिकल है वो नीचे रह गया, इम्प्योरिटी बाहर चलेगी। आपने से कहीं से पत्थर उठा लाए हो, पत्थर के साथ मिट्टी चिपकी हुई है, आपने पत्थर को अपने कहीं पे यूज करना है तो आप उसमें पानी डाल दीजिए, पत्थर की ग्रेविटी ज्यादा है, पत्थर वहीं रहेगा, मिट्टी खुल के आगे चले जाएगी। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैग्नेटिक सेपरेशन, the ores which are attracted by the magnet can be separated from non-magnetic impurity with the help of magnetic separation method. For example, the magnetic impurities such as iron and manganese tungstate present in the tin stone are separated by this method. मतलब समझ आया कि आपके पास कैसेटराइट SnO2 which is non-magnetic है, अब कुदरती तौर पे उसके अंदर आयरन और मैंगनीज के टंगस्टेन आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा एक रोलर लेते हैं, राइट, यहाँ पे हम कोई मैग्नेट्स लगा देते हैं, तो यहाँ पे हम जो ओर डाली है जो कि इम्प्योर है वो डालते हैं, तो जब ये तेजी से मूव करता है, इसको मैं खुशी खुशी में थोड़ा सा डायग्राम को ज्यादा ऐसा बना गया हूं, तो इसको ठीक करता हूं। तो ये हमारा रोलर है, जो हमारी मैग्नेटिक पार्टिकल होंगे वो इधर गिरेंगे और जो हमारे पास नॉन मैग्नेटिक है वो थोड़े से दूर जाके गिरेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? इट्स अ रोलर, तो मैग्नेट की तरफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स आ गए, नॉन मैग्नेटिक परे आ गए, हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट हियर। Similarly, chromite is magnetic and it is separated from non-magnetic reta. This method is also used for concentration of hematite, magnetite, pyrolusite, limonite for इनकी ores के लिए। Expect a question, अगली क्लास में करने शुरू कर दोगे कि which of the following ore के लिए magnetic separation method यूज किया जाता है, जिनके अंदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, non-magnetic substances. Ditto similarly, the electrostatic concentration. It is based on the principle when the electrostatic field is applied, the particles which are good conductor of electricity becomes charged and are consequently repelled by electrode having the same charges and thrown away. For example, जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड को अगर हम सेपरेट करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं, इनमें से एक चार्ज होके कहीं गिरेगा और दूसरा अनचार्ज होके कहीं पे गिरेगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेंट्रेशन, डोंट गो मोर देन दैट, मैं अपने आप बता दूंगा कहाँ पे स्ट्रेस करना है। दिस इज टू बी स्ट्रेस्ड अपॉन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फ्रॉथ फ्लोटेशन, हमें इसके ऊपर ध्यान करना होगा, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, टॉपिक बन सकते हैं। सो फ्रॉथ, झाग, कुछ ऐसा काम करेंगे, ओर लेंगे
उसके अंदर यूकेलिप्टस ऑयल या पाइन ऑयल डालेंगे, पानी डालेंगे और उसमें से कंप्रेस्ड एयर भागे तो वहां पे झाग बनेगी। जो झाग होगी, बबल्स होंगे, वो और पार्टिकल्स को ऊपर ले आएंगे और जो नीचे होगा उसके अंदर हमारे पास गैंग जो नहीं चाहिए। The important thing, this will be used for sulfide ores के लिए। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा तो क्वेश्चन उसने ऐसे पूछ लेना है कि which of the following can be purified by froth flotation process. That is the importance of this topic. ठीक, सल्फाइड और फ्रॉथ फ्लोटेशन में चलने वाले। The method is based on the principle of difference in the गीला होने की property of ore and gangue particle with water and oil. It is used for extraction of metals in which the ore particles are preferentially wetted by oil and gangue by water. यहाँ पे पढ़ो, ore by oil, gangue by water. This method has been used for concentration of sulfide ore, galena, zinc sulfide, copper pyrite, etc. वो list पूरी की पूरी. The sulfide ore particles are preferentially wetted by oil and gangue by water. In this method, the powdered ore is mixed with water containing small amount of oil. इसमें केरोसिन ऑयल नहीं डालना। एक क्वेश्चन पूछा गया था शायद इस साल या पिछले साल में, which other oil can be added in this? In a large tank, a rotating paddle by blowing air agitates the water violently when jhag is formed. आपने अपनी बाल्टी में झाग बना रहे हैं, अभी पढ़ाता हूं, इसकी इन्वेंशन ही वहीं से हुई थी। The jhag carries the lighter ore particles along with it to the surface. The heavier impurities are left behind and sink to the bottom. Since the ore particles float with the froth at the water, this is known as froth flotation process. Flotation. The froth at the surface is transferred to another tank, which on adding some acid breaks the froth and ore particles are separated by filtration and dried. You can have a look on this figure. झाग को अलग कर लिया गया, उसमें हमारे पास काम की चीज थी और नीचे वाली चीज को फेंक दिया गया. This is the innovative washerwoman. This is a story which I think you should read it. Inventions never ever come from big laboratories. Inventions just come from curious and the meticulous working mind. One can do wonders if he or she has a scientific temperament and is attentive to observations. This is the key. A washerwoman had an innovative mind too. While washing a miner's kapde, she noticed that sand and similar dirt fell to the bottom of the washtub. What was peculiar, the copper-bearing compound that had come to the close from the mine were caught in the jhag soap suds, and so they came to the top. Did you understand the story? एक लेडी है, राइट, जो कि वॉशर वुमन है, वो लोगों के कपड़े धोती है। वहां पे कॉपर की माइन में काम करने वाले वर्कर्स आते हैं, तो वो अपने कपड़े उस वॉशर वुमन को देते हैं। जब वो उनके कपड़े धोती है तो वो देखती है कि जब मैं कपड़े धोती हूँ तो नीचे रह जाती है मिट्टी और ऊपर उनके पास जो झाग है उसमें चमकती हुई उसको मटेरियल मिलता था. So she was just observing that. One of her client was a chemist, Mrs. Carrie Everson. The washerwoman told that experience to Mrs. Everson. Miss Everson later thought the idea could be used for separating copper compound from gangue particles on large scale. This way, an invention, the froth flotation, was born. At that time,
only those ores were used for extraction of copper जिसके अंदर large amount of metal होता था, मतलब हम जिसमें थोड़ा कॉपर होता था हम उसको छोड़ जाते थे। बट इस फ्रॉथ फ्लोटेशन की इन्वेंशन से कॉपर माइनिंग प्रॉफिटेबल हो गई, इवन फ्रॉम द लो ग्रेड ओर कॉपर, जहां पे कॉपर कम था हमने वहां से भी कॉपर को ठीक ठाक लगाना शुरू कर दिया। Word production of copper, so definitely the profit are going to go up and the metal become cheaper. We people were benefited. Tomorrow if you are going to bring some medicine, you are going to bring artificial kidney, you are going to bring artificial heart, then everyone is benefited. You and the clients are also going to be benefited. So that is from there this invention was born. चल सकता हूँ बेटे? Moving ahead. Yes, sir. Yes, sir. This method can also be used for separating one sulfide ore from another by adjusting the proportion to oil to water, right? Sometimes depressant are used to prevent certain type of particles from forming the froth with the example. For example, sodium cyanide can be used as a depressant in separation of zinc sulfide and lead sulfide. मेरे पास एक और है जिसमें जिंक और लेड सल्फाइड दोनों हैं। अगर मैं इसको झाग में डालूंगा तो मैं दोनों को सेपरेट तो नहीं कर सकता हूँ, मतलब जो ऊपर आएगा वो जिंक और लेड आएगा, तो आई कैन नॉट प्रोड्यूस जिंक और लेड फ्रॉम दैट। सो आई शुड थिंक of some method where I can produce either of the metal. Sodium cyanide forms a layer of zinc complex on the surface of zinc sulfide and therefore prevents it from froth. Therefore, sodium cyanide act as a depressant for what? Zinc sulfide. Because zinc sulfide sodium cyanide के साथ बना के रेक करके क्या बना देगा? सोडियम टेट्रा साइनाइडो zincate. Zincate. This will not form the froth. However, it does not prevent lead sulfide from forming the froth. Thus, the two ores can be separated by the use of depressant. ठीक है? पेज नंबर 23. अभी वापस आता हूँ बेटे, अभी वापस आता हूँ। तो एक सेकंड, मैंने कहीं पे रखा हुआ है ये क्वेश्चन, तो just for creating interest, nothing more. तो which type of ores can be concentrated by magnetic separation? Which are attracted by the magnet. You got it? Second अभी करवाता हूँ, अभी continued है. What is the role of depressant in froth flotation process? I think we just discussed. कर सकते हो? So expect these type of questions which are 110% based upon knowledge ही होने वाला है। आगे चलें बच्चों। तो again Yes, sir. this topic will be rewarding। और सुनो, अगर आप चाहो तो आप में से कुछ ने तो मेरे से बात करके शुरू भी कर दिया है, तो अब आप कोई ना कोई रिवीजन के या 11th के टॉपिक उठा सकते हैं। ठीक, तो मेरे से चाहते हो तो मेरे को बता दीजिएगा, बट स्टे इन टच। Kinetic gas theory. कुछ भी करना है बट एक टॉपिक, एक फ्रंट खोल लो, बिकॉज इस वक्त +2 के ये टॉपिक फुल फ्लेज चलने वाले नहीं है, तो इनके साथ कोई +1 के टॉपिक चला लीजिए। तो मेरे से बात कर लेना, दोज हु वांट माय गाइडेंस, सो बट यू शुड स्टार्ट, but at the same time this topic should be read many number of times. This is not the only topic you should be doing. Liquation. This method is used for concentrating ores having low melting point than the impurities. The powdered ore is heated on a sloping floor of the furnace. वही बेटिया, ये हमारे पास एक स्लोपिंग फ्लोर है, यहाँ पे हमारे पास इम्प्योर ओर है, यहाँ पे हम हीटर लगा देते हैं। ये हीटर, द टेम्परेचर इज रेज्ड जस्ट अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ओर। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड होगा, ओर होगी, वो थोड़ा नजदीक गिरेगा
और जो सॉलिड पाउडर फॉर्म में होगा, हम चाहे तो यहाँ पे हल्का सा ब्लोअर भी लगा सकते हैं, सॉलिड थोड़ा सा परे जाके गिरेगा। तो in that way the ore melts, flows down the floor in which the infusible impurities are left behind. आप ऐसा भी कर सकते हैं, स्लोपिंग सोर आ रही है, हीट कर रहे हैं, तो जो लिक्विड है वो विस्कोसिटी की वजह से नीचे रह गया, ऊपर हमारे पास गंदगी रह गई है। जैसे आपके अगर गुड़ के अंदर मिट्टी आ गई है तो आप उसको बॉयल कर सकते हैं, गुड़ पिघल जाएगा, वो आगे निकल जाएगा। जो पीछे मिट्टी है या कोई और चीज है, कोई मेटल की इम्प्योरिटी उसमें गिर गई है, वो पीछे रह जाएगी। Liquation, not a very important topic, but this is a very important topic, बहुत ज्यादा important. I'm telling you stress कहाँ पे करना है तो उसको ध्यान से रखिएगा। जैसे फ्रॉथ फ्लोटेशन और इसमें से यहाँ पे हमने स्ट्रेस मारना है। Let's move ahead and go to the leaching. Leaching, the leach, जोंक, ये क्या करती है, अपने काम की चीज निकाल लेती है और बाकी चीज को वहीं रहने देती है। This is a chemical method of concentration and is useful in the case the ore is soluble in a suitable solvent. देख, अन्य केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड इक्वेशन के ऊपर मैंने ज्यादा जोर नहीं मारा बेटे, केमिकल केमिस्ट्री आएगी वहां पे हमने जोर लगाया। Yes, sir. In this method, the powdered ore is treated with certain reagent in which, ध्यान से देख, the ore is soluble, Soluble. but the impurities are, हाँ बेटे, not soluble. Soluble. Impurities are not soluble. The impurities left dissolved are removed by filtration. For example, in Bayer's process, the ore of aluminium, the bauxite, Al2O3, it is concentrated by Al2O3. this. मैं क्या करूंगा, मैं जैसे ये पानी का गिलास है, इसमें और डाल दूंगा, इसके अंदर कोई केमिकल लीचिंग एजेंट डाल दूंगा, NaOH डालूंगा, सोडियम साइनाइड डालूंगा, तो वो क्या करेगा, जो ओर है उसको कॉम्प्लेक्स बना के सॉल्युबल कर देगी, इम्प्योरिटी नीचे बैठी रहेगी, ऊपर जो सॉल्युबल ओर आ गई थी उसको मैं अलग कंपार्टमेंट में लेके जाके प्रोसेस करके उसमें से ओर निकाल लूंगा। Yes. तो बेटी मेरे साथ रहे, बहुत काम की चीज चलने वाली है बेटिया, बहुत काम की चीज चलने वाली। एल्यूमिना दो प्रकार का पाया जाता है, रेड एंड व्हाइट बॉक्साइट। इसमें आयरन की इम्प्योरिटी है। तेरे को पता है मार्स का कलर क्या है? Red. Red. किसकी वजह से? Iron. तो उससे याद रखना, रेड बॉक्साइट आयरन की इम्प्योरिटी। Fe2O3. और रेत, सैंड का कलर क्या होता है नॉर्मली? व्हाइट, Brown. ब्राउन व्हाइट। असूलन तो उसमें जो चमकता हुआ पोर्शन है ना, तो व्हाइट सा है, तो उसमें गुड़िया सिलिका की इम्प्योरिटी होती है। व्हाइट में किसकी इम्प्योरिटी है? सिलिका। बायर्स प्रोसेस, बी से बॉक्साइट, बी से बायर, राइट। हम इसको इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड से या सोडियम कार्बोनेट से लीच करते हैं। अगर NaOH होगा तो बायर्स बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट होगा तो हॉल्स प्रोसेस बोला जाता है। व्हाइट बॉक्साइट को सतपट प्रोसेस से हम इसको प्यूरिफाई करते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड वाली है रेड बॉक्साइट की, वो प्रोसेस तकरीबन सिमिलर है, तकरीबन सिमिलर प्रोसेस है। सुनो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इन द बायर्स प्रोसेस the aluminium Al2O3 is concentrated by this method. The bauxite is usually contaminated with Fe2O3 largely. That is why red bauxite. Red bauxite. Titanium और SiO2 भी होता है। The ore is leached with strong solution. ये क्या है? NaOH Bayer's process. At around 420 to 450 Kelvin, when alumina dissolves in alkali to form sodium aluminate soluble, leaving behind the impurity. ठीक, दोनों में से जो सी मर्जी इक्वेशन याद कर लो, एक ही बात है।
Al2O3 plus 2NaOH plus water, NaAlHO4 और सोडियम मेटाएल्यूमिनेट। आपकी मर्जी है, जब क्वेश्चन आ गया तो उस मुताबिक एडजस्ट कर जाना बेटा। सुन पा रहे हो? Yes, sir. That is the same Yes, equation. sir. दोनों same. The solution of sodium aluminate is filtered. I hope you people understand. ये कहाँ पे आ गया? ऊपर आ गया, नीचे गंदगी रह गई। Cooled and its pH is adjusted downward, मतलब acidic बनाया गया by dilution or by neutralization with carbon dioxide. Carbon dioxide. Agitate for 2 to 3 hours, जैसे ब्लेंडर चलाते गए। When aluminium hydroxide is precipitated, even seeding with, थोड़े से बाहर से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डाल दो तो प्रोसेस जो 2 घंटे में होनी थी हो सकता है वो 40 मिनट में हो जाए। ये समझ पा रहे हो? ये इधर से इधर आ रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इधर से इधर आ रहा है। Yes, sir. अब इसके ऊपर तुमने डाला डाइल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, हमें क्या कर गया? AlOH3 प्रेसिपिटेट कर गया। इम्प्योरिटी कहाँ रहेगी? पतले कंपार्टमेंट में नीचे रह गई। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट था, अलग कर लिया गया फिल्ट्रेशन से, सुखा लिया गया, धो लिया गया और उसको तकरीबन 1200 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया गया। तो क्या आ गया बच्चों? द एल्यूमिना आ गया। Alumina. तो हमारे पास प्योरिटी आपके पास पूरी की पूरी आ गई है। राइट बेटा जी, आगे जा सकता हूं। Yes, sir. सी रेड बॉक्साइट, दिस इज समरी अन्या। तो अर्श, तो आप Al2O3 प्लस NaOH देख गुड़िया, फर्क देख बस क्या है, NaOH और सोडियम कार्बोनेट। NaAlH4 NaAlO2 सोडियम मेटालुमिनेट, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3, कार्बन डाइऑक्साइड डाला गया, AlOH thrice plus sodium carbonate. You got it? AlOH Yes, thrice sir. को हीट किया गया, प्योर एल्यूमिना, प्योर एल्यूमिना। इसको दोनों। रेड बॉक्साइट के लिए बायर्स प्रोसेस, इसको रेड बॉक्साइट के लिए सोडियम कार्बोनेट। False दोनों process. में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन are going to be asked this way: Hall's process is used for which bauxite? Something like this. आगे जा सकता हूं बेटे? अब हम Yes, sir. दोबारा जहां पे हमने शुरू किया था, तो यहां से थे हमने अभी अभी क्या डिस्कस किया है, ये वाली प्रोसेस रेड बॉक्साइट के लिए। अब जरा व्हाइट बॉक्साइट की सेवा करने चलते हैं। व्हाइट बॉक्साइट के लिए हम यूज करते हैं सरपेक्ट प्रोसेस। मैंने ऐसा याद किया था, अगर आपको ठीक लगे, S for सरपेक्ट, S for सिलिका, right? White for that. Anyway, you can remember, that will be good for me. आगे चल सकता हूं, ठीक? Yes, sir. इसमें अक्षिता एल्यूमिना, कार्बन एंड नाइट्रोजन, मतलब हम इसको कार्बन और नाइट्रोजन के साथ गुड़िया हीट कराते हैं तो हमें एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भाग जाती है। ये जो सिलिका जो इम्प्योरिटी है इसमें, वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके सिलिकॉन बनाती है, वो भी वेपराइज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब तुम सोचो ना, तुमने एल्यूमिनियम को ऑक्साइड से किस में कन्वर्ट कर दिया है? नाइट्राइड। दिस एल्यूमिनियम Nitride. नाइट्राइड is hydrolyzed to produce aluminium hydroxide. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड थर्ड स्टेप में हीट करके क्या बनाया जाता है? Pure Al2O3 alumina. वापस आ गया है। If you remember, I have already taught you how to obtain the aluminium from alumina electrochemistry. याद करो, क्रायोलाइट से उसकी आपको Yes, sir. मेटलर्जिकल ऑपरेशन पहले करवा दिया गया था, but this is एक स्टेप पीछे चल रहे हैं, right? So that is a summary. The Byers process, bauxite, roasted, right? Roasted or NaOH, right?
तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे पास आयरन होता है उसको हम Fe2O3 को रोस्ट कर देते हैं। अब रोस्टेड ओर में NaOH डाला जाता है, तो जो हमारा Al2O3 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम मेटाल्यूमिनेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पर आया गया। अगर हॉल्स प्रोसेस था, सिर्फ ये फर्क है, इसमें सोडियम कार्बोनेट, और वही चीज है उसमें हम अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और सल्फेट प्रोसेस में हम कोक नाइट्रोजन से क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। उससे फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हम प्रेसिपिटेट करा रहे हैं। अब तीनों में देखो कॉमन चीज देखो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ही आ रहा है। ठीक है जी। सो मैंने अभी आपको जो करवाया है वो यहां तक रखा है। उसके बाद अभी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कर चुका हूँ, हुक्स प्रोसेस भी बीच में आपके करवा दी जाएगी, जहां पे अभी रिफाइनिंग आएगी। अभी रिफाइनिंग नहीं आई है, अभी हम सिर्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ इसमें है। आगे जा सकते हैं बेटे। तो मूविंग अहेड, गोल्ड एंड सिल्वर extremely important. Gold and silver are extracted by MacArthur Forrest cyanide process. दोनों silver and gold particles dissolve in dilute solution of sodium cyanide in the presence of oxygen of the air, forming complex cyanide. The cyanide. The silver, right? अगर आपके पास है, उसमें सोडियम साइनाइड डाल के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनाया जाता है NaAgCN ट्वाइस। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से देखो। सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, हमने जानबूझ के उसका वो वाला जो आयुपैक नेम नहीं लिखा है। अगर गोल्ड होगा, ऑब्जर्व डिट्टो सेम रिएक्शन, सिर्फ सिल्वर और गोल्ड चेंज हुआ है। यहाँ पे सिल्वर, यहाँ पे गोल्ड। तो जो गोल्ड फ्री था उसको हमने क्या बनवा दिया, कॉम्प्लेक्स। इम्प्योरिटीज कहाँ रहेगी, उधर ही रहेगी। डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ द सिल्वर और गोल्ड इज रिकवर्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद जिंक। देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स इधर आ गया, ये वाला कॉम्प्लेक्स इधर आ गया, तो मैंने कोई बड़ी बात नहीं की है। अब इसके ऊपर जब जिंक डाला, जिंक ने सिल्वर को घर निकाला, दे दिया, बाहर आ गया प्योर सिल्वर। और अगर आपने जिंक डाला, उसने उसी प्रकार से किसको निकाल दिया, गोल्ड। नंदिनी रतन इसको क्या बोलता है, पढ़ के बता। मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। हाँ, कभी कभी गुड़िया इसको मैकआर्थर गोल्ड साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं। अब बच्चों इधर ध्यान से देखो, इधर राइट। नॉर्मली सल्फाइड ओर के लिए तुम क्या यूज करते थे, फ्लोटेशन प्रोसेस। बट अगर अर्जेंटाइट हो सिल्वर की ओर, तो उसको भी लीचिंग से हम प्रोसेस करवाते हैं। यू अंडरस्टैंड? आई रिपीट, नॉर्मली सल्फाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, द फ्रॉथ फ्लोटेशन। बट Ag2S के लिए, हम सिल्वर की ओर के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। चलिए जी, अभी वापस आता हूँ इस पेज के ऊपर। तो अगली क्लास में ऑब्जेक्टिव और डाल दूंगा, आज इतने नहीं डाल पाए। क्वेश्चन 2 कर लिया जाएगा। इसको बढ़ाना है। और सुन, आज जो भी आपके पास कोई पुराना सैंपल पेपर हो, उसको पढ़ने का है
आपको 3 नंबर के पीछे आपको कम से कम 40-50 मतलब ज्यादा माल बेचना है बेटे। ओके सर। और जहां पे पॉसिबल है एक फिगर बना देना, डायग्राम बना देना। टीचर ने ये सब कुछ पढ़ना ही नहीं है, जो मर्जी कर ले। अगर तुमने डायग्राम सही बनाया है, उसको डिपिक्शन सही की है, यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स, बट दैट डजंट मीन कि यू शुड नॉट राइट। क्लियर है? ओके सर। यस तो सर। बेटे डायग्राम जरूर बनाने के हैं। तो ये तो अभी करवाया नहीं। अरे यार ये क्वेश्चन करेगा? यस सर। एक्सक्यूज मी पढ़ सर। के बता। हाँ बोलो वेदी, बोलो वेदी। आई थिंक सर ये वाला Gold. चैप्टर कट गया था सीबीएसई से। अरे तूने करना है, कोई चैप्टर नहीं छोड़ना। वो मेरे पास है क्या कट्टा है क्या नहीं है, नहीं बट बस हमने एससी उससे मतलब बोर्ड से नीट के तो लिए तो ना, हमारा नहीं ना। टारगेट सिर्फ आपका नीट और जेईई है, कुछ नहीं छोड़ना बेटे तुम्हें, बस सब कुछ दिमाग से निकाल लो। एंड सुनो, मतलब यू पीपल आर एट एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, कुछ नहीं छोड़ने का। हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक। हमने सॉलिड स्टेट के ऊपर भी चांस नहीं लिया है, वही करवाया है जो हमें करना चाहिए था। चल अर्श बता इसका आंसर क्या होगा? तो सी। वेरी गुड, गोल्ड। वेरी गुड। चल भी सहर, बॉक्साइट। बॉक्साइट, उसमें मैग्नेटिक है। Copper. Copper pyrites. पढ़ा नहीं था टेन साइड। कैसेटराइट। मैंने कहा था मैं आज के दिन में क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा. अच्छा की बच्ची, मैंने तेरे को वहां पे बोला था पेज नंबर 90 याद रख। मैंने तेरे को बोला था कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा डोली, देख ले। यस तो सर। हाँ, मैंने बोला था इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो भी शर्म नहीं करते हैं कि कैसे पूछना है। कैसेटराइट, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है जी। एनीवे हाँ जी. पूरा ढंग से पढ़िएगा। तो एक सेकंड, टिन, टिन की मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज उसके साथ पाई जाती हैं। ये हो गया था, ये हो गया था। हाँ ये क्वेश्चन, अगर आपको गोल्ड और सिल्वर में से चांस लेना ऑप्शन आ रही है तो गोल्ड। कौन ज्यादा? गोल्ड। गोल्ड क्योंकि सिल्वर का एक था तो हाँ गोल्ड, सल्फाइड में हमने किया था एक। गोल्ड लेस रिएक्टिव है। फोर्थ, Argentite. सी से HgS आता है, बताओ क्या बोल रहा हूं? अच्छा सिनेवा HgS। अब फॉर्मूला देखोगे, हॉर्न सिल्वर AgCl, बॉक्साइट Al2O3, हेमेटाइट Fe2O3, सिनेबार HgS। फिफ्थ, तो ए। Phosphotestin. क्लियर? Yes, sir. सिक्स्थ, Ag. सिल्वर। हाँ अब गोल्ड है नहीं। सेवंथ में, अगले पेज पे आंसर दिखा दो। अब समझ आ गया? अगर वहां पे ढंग से नहीं देखा था तो अब आपको वापस जाना होगा, ठीक है जी। A वाला है. गो, तो पक्का? सी। तो सी। A. अच्छी, ये पेज नंबर याद रखना, 90 कौन सा था? 6 था ना? 96। यस सर। अभी देख बेटिया, पता है क्या, अगर अभी नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपकी मेमोरी नहीं चेक कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि आप वापस जाके उसको अब पक्का करिए। नाउ ओके।
the importance will be known to you that जिंक के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, सिल्वर के साथ, गोल्ड के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। ऐसे एक इंसान जो कि ऊपर चला गया, उसका नाम वर्नर था, उसने हमें बताया था। समझा? Yes, sir. सो बेटा ये वापस आके देखना बस, ताकि जब जरूरत पड़े तब आप तैयार हो। सो आई थिंक यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक दैट इजी क्वेश्चन आएंगे। Galena. वेरी गुड। PBS. अब मेलाचाइट का फॉर्मूला जाके देखना। गैलेना क्या था? PBS. So the questions are correlated with each other. अब आप खुद सोच लो, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से ज्यादा नंबर लेना चाहते हैं, जो कि लेना होगा, या आप यहां से मार्क्स लूज करना चाहते हैं। आगे चलें। सो हमने 1 और 2 कर लिया, हम यहां पे पहुंचेंगे वर्किंग ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड ओर। इस चैप्टर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आएगी इसके बाद, तीसरे और चौथे के बाद, एलिंगम डायग्राम। That will be one of the toughest thing after the coordination chemistry, but it will be easy. It will be easy अगर आप हमारे साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए जी, हम चल रहे हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड ओर। वर्किंग ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड ओर, this is the heart of the chapter, as I told you earlier. The working of the concentrated ore, फर्स्ट स्टेप में हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर को इट्स ऑक्साइड फॉर्म में बनाते हैं, उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है। सेकेंड में कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड टू द मेटल में हम उसको कन्वर्ट करते हैं और रिडक्शन हम करने वाले। अर्श मेरे से बात कर बिटिया, ठीक है अर्श? तो कुछ चीज डिस्कस करनी है, और अर्श इसमें से एक सब फील्ड उठेगा जिसको बोलते हैं मटेरियल साइंस, एंड हिंदुस्तान में नहीं है, पहले दिमाग से निकाल देना, ठीक? बट हिंदुस्तान से बाहर इट इज अ कैश काउ। यू आर क्रिएटिंग न्यू टाइप ऑफ मटेरियल्स जो कि आपके एयरप्लेन्स का, आपके शिप का, आपके कार का वेट कम कर देंगे। यू आर मेकिंग न्यू टाइप ऑफ मटेरियल के आपके एरोप्लेन्स, आई एम नॉट जोकिंग, राइट? आपके एरोप्लेन्स जो पायलट्स बैठते हैं उनको नीचे रनवे नहीं दिखता है, क्योंकि उनको स्ट्रेंथ के लिए मेटेलिक फ्लोर बनानी पड़ती है। दे आर मेकिंग सच टाइप ऑफ मटेरियल कि आपके एयरप्लेन्स में जो फर्श होगी वो एक शीशे के जैसी होगी। आप उससे नीचे दुनिया में क्या हो रहा है, आप साइडों से आप पूरी दुनिया को देख पाओगे। दिस ऑल कम्स फ्रॉम मटेरियल साइंस आउट ऑफ दिस चैप्टर, सो इट इज इंटरेस्टिंग। आज देख, आप लोगों ने अभी थोड़े समय पहले सल्फाइड्स भी देखे, राइट? और देखने भी हैं। अगर सल्फाइड्स में से बेटे अगर हम इसको रिड्यूस करें तो हम इसमें से कॉपर या आयरन लें। अभी थर्मोडायनेमिक एंगल से समझाया जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी कॉस्टली एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू पुअर यील्ड। ओके सर। सो हम सल्फाइड को यूज नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास सल्फाइड्स हो, हम उनको कन्वर्ट करवा लेंगे ऑक्साइड में। अगर आपके पास कार्बोनेट्स होंगे, हम उसको कन्वर्ट करवा लेंगे ऑक्साइड में, बिकॉज ऑक्साइड में से मेटल को निकालना यानी कि कौन सी प्रोसेस होगी डॉली? रिडक्शन। ऊपर भी रिडक्शन होगी। मेटल्स को निकालना, दिस विल बी मच इजी, राइट? This will be cheaper and this will be giving you a good yield. So बेटे automatically आप किसमें से निकलवाना चाहेंगे मेटल को, किसको? So I hope you understand. First concept has been discussed with you. Now thermodynamics को देखो। Thermodynamics class 11 basic thing. Iron plus oxygen unbalanced equation है। मैंने कोशिश नहीं की, गलती से हो गया तो हो गया, अदरवाइज दैट इज नॉट मेरा इंटरेस्ट में है।
ये प्रोसेस होती है रस्टिंग की कि नहीं होती है? तो होती है तो डेल्टा एच क्या होएगा? नेगेटिव। तभी तो फिजिबल होगा ना। यस सर। अरे हमने जो आपको ओर्स दी थी वो सारी की सारी ज्यादातर ऑक्साइड ही होंगी, अभी बता ही चुका हूँ। यस सर। तो इसमें बहना जब तुमने आयरन एंड ऑक्सीजन निकालनी है तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा जी क्या है? पॉजिटिव। अरे उप्स, ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ? डिड यू अंडरस्टैंड? ऑल यस। मेटलर्जी इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके अब सर। देखो ना, कुदरत ने तो तुम्हें कंपाउंड बना के दे दिया, अब तुम उस कंपाउंड को तोड़ के नेचर के अगेंस्ट जाना चाहते हो, तो नेचर भी डंडा लेके ऊपर बैठी है, कैसे करेगा? ऑफ कोर्स ओके सर। यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। हमने देखा एक तो अगर इंट्रोपी को बढ़ाएं, वो तकरीबन हर प्रोसेस को करवाने के लिए तैयार बैठी होती है। एंट्रोपी बढ़ा दो, राइट? कोई समाज आपस में लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, हमें उस समाज को खराब करना है तो हम उसके अंदर लड़ाई करवा देंगे। जब उनके अंदर लड़ाई हो जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली टूट जाएंगे। सो दैट इज यस द सर। ह्यूमन फिलॉसफी। अब हम एंट्रोपी को कैसे बढ़ाते हैं? टेम्परेचर। क्योंकि टी डेल्टा एक्स टर्म हमेशा क्या आती है? कंबाइंड आती है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इनकी तो बॉन्डेड टिल एटर्निटी है, ये अलग नहीं होते। टेम्परेचर बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है जी। अब ठीक यस। है, आपके पास कोई आयरन की रोलिंग मिल है, आप उसमें से आयरन निकालते हैं, तो मैं कहता हूं चल अश मोहाली के अंदर एक फैक्ट्री लगाते हैं जिसमें हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब आप देखते हैं कि मोहाली में जो पावर आती है दैट इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली, राइट? आपके यस पास सर। आज के दिन में भी ज्यादा नहीं तो चलो ज्यादा बोल गया हूँ, 8 रुपए 6 रुपए से कम यूनिट नहीं है। और कोयले यस। आने के लिए हमें फिर बिहार की तरफ जाना पड़ता है। तो इज इट गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन? नो। नो सर। देन फिर हम केमिस्ट्री का मुंह देखेंगे। केमिस्ट्री का मुंह देखेंगे और प्रोसेस को करवाने के लिए कौन सा चैप्टर आता था तेरे पास? थर्मोडायनेमिक्स। यस सर। थर्मोडायनेमिक्स में ही तुम्हें सिखाया गया था ना प्रोसेस को करवाना कैसे, और तो हमने कहीं आपसे बात ही नहीं की है। अब यस सर। थर्मोडायनेमिक्स और एकलव्य में ये बात की थी। अब मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, कपल्ड रिएक्शन, राइट? कपल्ड रिएक्शन में क्या करूंगा, ए से बी नहीं होता है, डेल्टा जी ऐसे ही आपको समझाने के लिए इसको मैंने कर दिया है डेल्टा जी प्लस 100 था, नॉन स्पॉन्टेनियस। बढ़िया। यस अब सर। मैं इसको किसी ऐसी जगह पे जोड़ दूंगा कि बी से डी भी साथ में बना दूंगा। इसमें जो मेरी डेल्टा जी है -250 है, और अब मैं दोनों को इकट्ठा कर दूंगा। जब दोनों को इकट्ठा करूंगा तो मेरी जो डेल्टा जी नेट आएगी -150 आएगी। यस और ये सर। जो कपलिंग कराऊंगा, ये कपलिंग मैं एक बड़े मजेदार एजेंट से, जो आपने सुना तो है बट मैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट करवाऊंगा कि व्हाई डू वी यूज रिड्यूसिंग एजेंट, ओके राइट? सर। So this is going to be the drama happening where I said the heart of the process chapter will be happening, working of the concentrated ore. इसमें दो स्टेप आएंगे। पहला क्या स्टेप आएगा? ऑक्सीडेशन। और दूसरा क्या आएगा? रिडक्शन। Why you want to do oxidation? Because practically we have observed, observation है कि हम ऑक्साइड में से मेटल आसानी से निकाल सकते हैं। अभी कराऊंगा एलिंगम डायग्राम, थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे तो हम वैसे इसमें से नहीं निकाल सकते थे, सल्फाइड और क्लोराइड में से नहीं निकलता। और दूसरा, जब हम रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन इज गोइंग टू बी, ऑक्साइड को जब रिडक्शन करेंगे दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो उसको कराने के लिए मेरे पास दो ढंग होंगे। एक, टेम्परेचर को बढ़ा दो, ठीक है, अगर टेम्परेचर 600-700 पे बात बन रही है कर लो, जैसे हम आपकी किचन में काम करते हैं।
बट अगर कोई प्रोसेस 4000 केल्विन पे जाके होती है, सो हम उसके लिए टेढ़ा रास्ता लेंगे, हम उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे, ओके राइट? सर। सो देयरफॉर डॉली हम थर्ड के सब टाइप में घुस गए हैं. व्हाट इज दैट? द ऑक्सीडेशन. फिर रिडक्शन की बात करें. द कॉन्सेंट्रेटेड ओर जो हमने पीछे से लाए हैं, उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के दो मेथड होंगे, द कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. ये चैप्टर में खुशी खुशी में वो अक्सर आयरन लिख जाएगा ओर की जगह पे, राइट? इट इज ऑक्साइड ओर है, by following two methods. One is calcination. Calcination is the process of heating the ore strongly in a limited supply of air or in the absence of air. ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा. Limited, right? और in absence of air. होता दोनों में एक ही चीज है. During calcination, moisture is removed, volatile impurities भाग जाएंगी, the ore becomes porous, water from hydroxide is removed, carbonate decomposes to oxide. ध्यान देने वाली बात आज, hydrated oxide and carbonate ores are generally, हाँ गुड़िया, calcined to give oxide. Calcination is used for which ores बेटे? पढ़ के बता. Which Hydrated type of oxide ore? and carbonate ores. और इधर देखो, सेकेंड स्टेप रोस्टिंग. ऑक्सीडेशन के दो स्टेप हैं, कौन सा? एक कैल्सिनेशन और एक रोस्टिंग. मुझे पता है तुम्हें चिकन बहुत स्वाद है, राइट? लगता है तो तुमने चिकन रोस्टेड वर्ड सुना है. अगर वेजिटेरियन है तो आने के मुंह में पानी आ गया, तो उसको पनीर खिला देते हैं, रोस्टेड पनीर. ठीक है आन्या? तो रोस्टिंग, रोस्टिंग हैपेंस. उसके मुंह में पानी गिर रहा है अभी तक. उसके रोस्टेड चिकन आज ऑर्डर करने वाली है, बस ये अभी इसने स्विगी खोल लिया है. तो सुन बेदी, बेदी गुड़िया, रोस्टिंग Yes, sir. कभी होती देखा होगा? वो तो हवा में होती है, खुले एटमॉस्फेयर में होती है ना. बस Yes, ये sir. वर्ड याद रखने का है. बस ये रोस्ट मैंने तभी बोला. रोस्टिंग is the process of heating the ore in the presence of very Excess air. calcination limited Limited थी. at temperature below the melting point. अगर मेल्ट कर दिया तो मेरी अगली प्रोसेस शुरू हो जाएगी. अभी मैं वो नहीं करना चाहता हूँ. Below the melting point, and bide, it is mainly used in case of Sulfide ores. sulfide ores. It is experimentally proven. आप जैसे किसी सर्जन से पूछोगे कल को जाके कि सर आप ऑपरेशन को इसी ढंग से क्यों करते हैं, he might not tell you the reason exactly at that point, but definitely he or she will be having a logic. Okay, dear student, I know when I do in this way, I get better results. When I do in that way, so I get poor result. जैसे आपको पता है जब ब्रेन सर्जरी की जाती है तो पेशेंट को उल्टा लेटाया जाता है. जैसे हम पेट के बाहर नहीं लेटते हैं, तो उसको ऐसे नहीं लेटाया जाता है. So that is the surgeons know, the scientists know, इस वक्त the chemists know that which is going to give you the best results. होता दोनों में सेम चीज है. रोस्टिंग में मॉइस्चर निकल जाता है, volatile impurities like SO2, carbon dioxide, ये उड़ जाती है. CO2. The ore is converted to oxide. दोनों में ore को किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, impurity of sulfur, arsenic, phosphorus. रटा नहीं मारना बेटे इन इक्वेशन को, अपने आप लिख दे. सल्फर किस में भाग गया? SO2. arsenic oxide P2O5. Sulfides will be converting into oxide. ठीक है बढ़िया. सबसे बढ़िया चीज इसमें, जब तक मैंने कहूँ इक्वेशंस Yes, को sir. याद नहीं करने का. And of course, certain times sulfides are also going to be converted into the sulfates. तो एक काम कर मेरे साथ, ठीक, मेरी मदद कर, अगर कहीं मैं भूल गया. All of you will be trying. इधर रख लेते हैं डॉली एक टेबल, किसका? कैल्सिनेशन का. Calcination. और इधर रख Roasting. लेते हैं रोस्टिंग का.
कैल्सिनेशन मैं भूल गया, Limited. हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स और कार्बोनेट ओर्स। ठीक है, एंड कार्बोनेट्स। और पढ़ने का जितनी बार भी कार्बोनेट्स ओर्स, और इसमें Limited oxygen. लिमिटेड एयर। यू आर राइट, ऑक्सीजन, और इसका भी दिल रखते हैं जो तेरी सहेली ने बोला, एयर। रोस्टिंग में मेनली सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स। और सेकंड एक्सेस ऑफ एयर। Supply of. और जो कॉमन चीज है, सल्फर SO2 निकल जाती है, जो वेपर है वो ऐसे निकल जाता है, फास्फोरस Sp4O10 निकल जाता है, आर्सेनिक AS2O3 और दोनों में ही क्या बनते हैं, ऑक्साइड ऑक्साइड। आर फॉर्म। Form. रतन मैडम आगे चलूं? हाँ जी. रतन, अगर एक पेज पे इतनी इंफॉर्मेशन है तो बहना वो ये वाला पेज है। ठीक है बहन, एक एक हाँ करके जी. डिटेल में पढ़ाऊंगा इसके बाद, ये सारे अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वीडियो। कन्वर्जन Okay, ऑफ sir. ऑक्साइड टू द मेटालिक फॉर्म अब किस में आ गया बहना, रिडक्शन में आ गया। पहले तूने सारा को ऑक्साइड में Reduction. बता दिया था, अब हम फोकस कर गए ऑक्साइड, राइट। तो पुलिस वालों के पास कुछ चोर हैं और कुछ लुटेरे हैं, तो वो उन सबको एक ही चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, अब सबको एक प्रकार से ट्रीट किया जाएगा। दिस इज जस्ट एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, है ना, ऐसा सच में नहीं होता है। तो हमने सारी प्रकार की ओर्स को किस में कन्वर्ट कर लिया बहना, द ऑक्साइड्स में, Oxide में. क्योंकि अब हम एक प्रकार की प्रोसेस लगाएंगे, स्मेल्टिंग। व्हाट इज स्मेल्टिंग? The process of extraction of metal in the fused state is called smelting. ओ बहना, सॉलिड से लिक्विड पे इंट्रोपी बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है। तो अगर इंट्रोपी पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या होएगी बेटे, favored. So that is why we will try to obtain, Sunny, the metals in which state बेटे, the liquid state. आप चाहते तो इसको गैस में भी लेके जा सकते हैं, पर गैस में से पकड़ के कैसे लेके आएगा, वो तो बाहर जाएगा ना। तो हम मेटल को गैस की फॉर्म में नहीं लेते, समझ गया? द रोस्टेड or calcined ore containing metal oxide is mixed with a reducing agent and heated to high temperature. It is again बहुत important. Depending upon nature of oxide and metal, the extraction of metal can be carried by either of the following reducing agent. भाई ध्यान से, very very important. याद नहीं करने का है, प्री कंडीशन, राइट। कार्बन और मोनोऑक्साइड में आयरन, कॉपर, लेड, टिन, जिंक एक्सेट्रा के लिए यूज होती है। ठीक बच्चों, रिडक्शन विद सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन इज यूज्ड in manganese, chromium, titanium, molybdenum, tungsten. Water gas is carbon monoxide and the hydrogen, right? It is used in the metallurgy of nickel. Auto reduction. Auto reduction में ध्यान दे नंदनी, सनी, no RA का मतलब गुड़िया reducing agent is needed. लेड, मरकरी, कॉपर, ऑटो रिडक्शन। जब तुम्हें क्वेश्चन आएगा which of the following can be reduced by auto reduction, in which of the following the carbon monoxide and hydrogen is going to be, the water gas is going to be used as a reducing agent, that type of question. and कोई मंथन नहीं करना, सबसे बढ़िया बात, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मंथन करना पड़ता है, you have to churn the idea, then the best idea comes. Here that is not required. 5-6 times reading thoroughly, that is going to be more than enough. Let us read them one by one.
वन बाय वन अब हम इनको पढ़ने जा रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। रिडक्शन विद कार्बन और मोनोऑक्साइड, रिडक्शन विद कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, एक एक करके आपको पढ़ाने वाला हूँ। इन सबको अब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, ब्लास्ट फर्नेस। टॉपिक इंपॉर्टेंट, और सबसे बढ़िया बात, इक्वेशंस को रटने की जरूरत नहीं होती, सब में एक ही चीज निकलवा दूंगा। तो सनी, कार्बन और मोनोऑक्साइड, जिंक, copper, tin, lead, there is no shortcut to this video, can be reduced by using carbon as reducing agent. The roasted ore mixed with suitable amount of carbon, इसकी forms हैं coke और coal और monoxide, and are heated to a high temperature above the melting point. अब की बार smelting, मेटल को मोल्टन फॉर्म में लेके आना है। इंट्रोपी फैक्टर को मैंने अपने साथ मिला लिया, उससे मुझे लड़के कोई फायदा नहीं है, तो वो मेरे अगेंस्ट चलेगा तो मेरा काम नहीं होगा, तो मैं उसके साथ चलना शुरू किया। The carbon or monoxide produced by incomplete combustion of carbon reduces the oxide to free matter. See बेटे, no need to memorize this question. अरे बेस पकड़ो ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलता है? रिडक्शन। देख, जी SnO2 10, zinc oxide zinc, lead oxide lead, iron oxide iron, manganese oxide manganese। कि रट के क्या कर लोगे, समझा? वैसे भी रट के यहाँ पे कोई फायदा ही नहीं होने का है, वो बता दूंगा जहाँ पे रटना है। अभी सिर्फ आपको ऑनेस्टी से इसको पढ़ना है। तो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड हम किन के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। टिन, जिंक, लेड, मैंगनीज, राइट, एक्सेट्रा के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे ध्यान करना बेटे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी सिर्फ मैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन, आप सिर्फ वो देखेंगे तो आप समझ आएंगे। अब राइट, आपके घर में कोई इंसेक्ट घुसे हुए हैं, लेट इट बी आपके किचन में या सीवेज टैंक में कहीं पे घुसे हुए, उनको निकालना आसान नहीं है। आपके घर में एक छोटा सा चूहा आ जाता है तो उसको निकालना आसान नहीं है। हम उसको पकड़ने के लिए, उसको हम ट्रैप करने के लिए उसको बादाम खिलाते हैं, चपाती के ऊपर घी लगा के, उसके ऊपर थोड़ा सा एग डाल के हम उसको अट्रैक्ट करते हैं। आजा मेरे भाई और बेटी, अश, तो वी आर केमिस्ट सो वी नो सर्टेन थिंग। मैं पता अगर घर में चूहा आ जाए तो मैं उसको कैसे पकड़ता हूँ। मेरा अरमान है यहाँ पे नहीं, आज अरमान नहीं है। तो इंदर, मैं क्या करता हूँ, छोटी सी रोटी बनाता हूँ, बिल्कुल जितनी 1 रुपए की जितनी नहीं होगी, उसके अंदर ना बनाने के समय में एक धागा डाल देता हूँ। यू अंडरस्टैंड, सरकमफ्रेंस के ऊपर धागा डाल देता हूँ। तो उसको जब हम उसके पेट में डालते हैं ना, नॉर्मली तो कई बार चूहा रोटी निकाल के चला जाता है, तो जब बीच में धागा डाल दिया है तो जब वो चूहा खींचता है तो वो पक्का फंसता है। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? तो हम ऐसा कोई काम करेंगे, जो इम्प्योरिटी छुप के बैठी है उसको मैं बुलाऊंगा, अट्रैक्ट करूंगा। इम्प्योरिटी को क्या बोलता था? गैंग। तो ड्यूरिंग रिडक्शन an additional substance called flux is added to the ore. It combined with impurity to form easy पिघलने वाला product known as slag. Slag is not soluble in molten metal. Being lighter, it can be easily skimmed off from the surface of the molten metal. The choice of flux depends upon nature of impurities. For example, अगर ore के अंदर acidic impurity है, then basic flux like chuna is used. Silica क्या है बढ़िया? Acidic. Calcium oxide क्या है? Basic. अब एसिड और बेस, उसका स्वभाव है कि उसकी तरफ आएगा ही आएगा, और हम उसको कैल्शियम सिलिकेट मॉलिक्यूलर मास बढ़ा दिया, हम उसको पिघलाता हुआ बाहर निकाल लेते हैं। अगर बेसिक इंप्योरिटी हुई सच एज कैल्शियम आयरन मैग्नीशियम कार्बोनेट लेफ्ट हैंड साइड से या मेटल्स में, देन एसिडिक फ्लक्स लाइक रेता इज यूज्ड। नाउ दिस इज बेदी दीदी क्या है? द बेसिक गैंग, और हम उसमें फ्लक्स कौन सी डाल रहे हैं? द एसिडिक फ्लक्स डाल रहे हैं, और ये फेरस सिलिकेट, इसको थॉमस स्लैग के नाम से भी जाना जाता है, हम बाहर निकालते हैं।
आज से कुछ साल पहले जो लोग आयरन पैदा करके दुनिया को देते थे वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन होते थे। तुमने ये टाटा, बिरला और ये जो आपके पास लंदन में सबसे रिच फैमिली कौन सी है, इंडियन है ब्रिटेन में? पता नहीं सर। हिंदुजास हैं कि कौन है? सो दे आर अगेन ये आयरन के फाउंड्री के और ऑनर्स थे। तो हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस आती है। माइंड इट, दिस क्वेश्चन can be asked under 5 marks. Blast furnace. That is the importance of this topic, the blast furnace. 1 मिनट 52 पेज पे आपको पहले बता दूं कि आपका फिर इंटरेस्ट बना रहेगा कि आपको इसको क्यों पढ़ना है। This is your NCERT question. Write down the reaction takes place in the blast furnace. ये JEE एडवांस्ड में 12 नंबर के नीचे तक पूछी गई है। That is the importance of beta party, this process. Blast furnace, I'm writing, it is one of the most important concept. सुनो, अगर टेम्परेचर में कभी भी कंफ्यूजन हुआ, although I try to stick with the NCERT, बट अगर कहीं पे मेरे में और उनमें कॉन्ट्रास्ट हुआ तो आप लोगों ने NCERT को ही फॉलो करना है, नथिंग एल्स। सो एक बार इसका जरा ये डायग्राम पढ़ लेते हैं, तो अर्श बात करेगा मेरे साथ। Yes, sir. Blast furnace, the extraction of most important metal iron is carried out in blast furnace. बेटा तेरे को डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। It's a tall cylindrical furnace made up of steel lined with fire clay refractory bricks. It may be 60-80 feet high और टेम्परेचर हम तकरीबन 2000-3000 के बीच में ले जाएंगे। तो उसमें स्टील से इसकी वॉल बनाई जाएगी, उसके अंदर स्पेशल मटेरियल की ब्रिक्स लगाई जाएंगी, द फायर क्ले रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स, जैसे कि आपके ओवन के अंदर अगर आप कहीं कमर्शियल देखते हैं लगाई जाती है। इट इज नैरो एट द टॉप एंड हैज कप एंड कोन अरेंजमेंट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज एंड आउटलेट ऑफ वेस्ट गैसेस। I hope you can imagine a tractor, right? ट्रैक्टर के जो एग्जॉस्ट की पाइप जा रही होती है उसके ऊपर मान लीजिए ऐसी पाइप है, उसके ऊपर एक ऐसा ढक्कन सा होता है। जब इसमें से गैसेस निकलती हैं ये ऊपर उड़ जाता है, राइट? Okay. तो इसमें से गैसेस निकलती हैं, जब वो अपना इंजन बंद हो जाता है वो ढक्कन इसके ऊपर ऐसे आ जाता है, बिकॉज दैट इज कनेक्टेड विद द इंजन। उसमें से कोई चीज ऐसा, कोई पक्षी या कोई चीज ना गिर जाए हमारे जो इंजन को खराब करे। एट द सेम टाइम इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, जब हम इसको उठा देते हैं तो हम इसके अंदर और हम इसके अंदर फ्यूल डाल सकते हैं। दैट इज ही इज टॉकिंग अबाउट। ये एक ऐसा है, यहां से एग्जॉस्ट गैसेस के लिए, यहाँ पे और लाइमस्टोन कोक ये सिर्फ अंदर की तरफ खुलता है और इसमें से ये इसका डिजाइन है। इसमें 3 चीज डाली जाती है बेटे, पढ़ के बता। Ore, limestone, and coke. और इज जो हमें चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट हमें फ्लक्स देगा, हीट होने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और Okay, sir. कोक 2 मतलब पूरे करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ये क्या है, फ्यूल है। Fuel. इसको मिला के क्या बोला जाता है, चार्ज। ध्यान से देख, नीचे टेम्परेचर ज्यादा कम 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 है, ऊपर की तरफ जाते जाते गुड़िया टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे कुछ रिएक्शन अभी पढ़ते हैं, कुछ रिएक्शन और ये यहां से क्या जा रहा है, ब्लास्ट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन। ये डिफरेंट लेयर बनेगी, ये स्लैग की लेयर होगी जो ये आपकी मॉव कलर की है, और ये आपकी बेटे आयरन की लेयर बनेगी। यहां से Okay. हम
पिग आयरन इसको बोलते हैं, बाहर निकालेंगे। ये आपकी क्या बाहर आ रही है? फ्लक्स बाहर आ रही है। ठीक बेटा, Yes, sir. इसमें आज 4 जोन बनने वाले हैं। द कैल्साइंड और coke and limestone, which is heated with a blast of hot air blown upward with the help of tube arrangement, ऊपर से डाला है। tube arrangement is जिसको आप जरूरत पड़ने पे खोल या बंद कर सकते हैं। The added coke serve as a fuel as well as a reducing agent, while lime serve as a flux. The reaction is exothermic, and as it proceeds, a composition, कहीं पे आयरन मिलेगा, कहीं पे आयरन ऑक्साइड मिलेगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट ऊपर की तरफ टेम्परेचर कम होगा, is set up in the furnace. Different chemical reaction occurs at different temperature. एक गुरु मंत्र याद रखना, अभी पता लग जाएगा। CFSR नीचे से ऊपर जाते हुए होने वाला है। Okay, चलिए, sir. नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, C से बना combustion zone, right? At the base, the coke burned to produce CO2, which starts rising upward. गैस ने ऊपर जाना है। The reaction is exo. The heat produced raises the temperature to around 1700 Kelvin. मेरे हिसाब से तो टेम्परेचर नहीं याद करना है, बट अगर आपको याद करना है तो सिर्फ एनसीईआरटी के टेम्परेचर बेटे। Okay, ठीक? sir. This region is called as combustion zone. तो बहना, सबसे नीचे कौन सा जोन है? Combustion. उसमें क्या रिएक्शन हुआ? Coke burns to produce carbon dioxide, जो rise करेगी फिर. एंडो है रिएक्शन की एक्सो है? Exo. सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन से जोन में है? Combustion zone. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चढ़ रही है? ऊपर की ओर। Yes, और sir. ऊपर से पाउडर के रूप में चार्ज स्प्रे होना शुरू हो गया है। समझ आ गया? Yes, sir. ऊपर से पाउडर के फॉर्म में, वो देखो, इमेजिन कर, आयरन की ओर आ रही है, जैसे मिट्टी डस्ट नहीं फॉल कर रही है, धीरे धीरे बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में नीचे की तरफ आ रही है। Okay, sir. गुड बहना। CFSR, F से क्या बना, समझ आ गया? Yes, sir. Fusion zone. ये नीचे से कौन से वाला जोन है? सेकंड जोन। Second. As carbon dioxide rises upward, it comes in contact with layers of coke and get reduced to carbon monoxide. इंसानी दिमाग है, जब तक हो सकेगा तो फायदा उठाएगा। हमने ऐसे थोड़ा कार्बन डाल दी थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊपर उठ रही है, ऊपर से क्या आ रहा है? कार्बन। कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तुमने क्या पैदा कर दिया? CO। और डेल्टा H क्या है? Positive. Endothermic. तो टेम्परेचर क्या करेगा? Decrease. द आयरन प्रोड्यूस्ड, जो ऊपर से भी आयरन आएगा, वो यहाँ पे आके क्या कर जाएगा? मेल्ट कर जाएगा। फ्यूजन मतलब मेल्ट करता है इस जोन में। Okay, अगर sir. कोई बचा कुचा ऊपर से कोई चोर यानी कि Fe2O3 आ रहा होगा, वो भाई साहब भी रिड्यूस हो जाएंगे, हॉट कोक टू आयरन बना जाएगा। और इसके अंदर गुड़िया कौन सा रिएक्शन हो रहा है? Endothermic. Exothermic. पढ़ के बता। दोनों ही exothermic है. तो बता मेरे को इस पे कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, क्योंकि आपसे पूछने वाला है ना वो। उससे पहले कोक कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड में रिड्यूस होती है, एंड फिर अगर कोई Fe2O3 रिड्यूस नहीं होता तो वो फर्दर रिड्यूस हो जाता है आयरन में. और Fe2O3 is being reduced to iron and carbon monoxide. समझ गया? मोनो. यस सर. चल डाली, क्या याद करने के लिए बोला था? CFSR. यहाँ पे कहीं पे कंबस्चन होगा, यहाँ पे कहीं पे फ्यूजन होगा, यहाँ पे कहीं पे क्या आ गया है? स्लैग फॉर्मेशन. In the middle portion of the furnace, the temperature is around 1000 Kelvin. In this region, the limestone decomposed to produce CO2
and calcium oxide combined with impurities to produce slag. तो इसमें रिएक्शन क्या हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर गया, कैल्शियम Yes, sir. ऑक्साइड सिलिका के साथ क्या बना गया? कैल्शियम सिलिकेट। अब ये कैल्शियम सिलिकेट मोल्टन फॉर्म में है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ये नीचे बुछार आनी शुरू हो गई है। The molten slag at iron trickle down and separate layer forms a separate layer. Slag ऊपर आएगा, lighter है, and this region is known as what? Slag formation zone. मैं इकट्ठा कर रहा हूं, ठीक, मैंने रखा ही ऐसे हुआ है, बट अभी मैं फोर्थ जोन में पूछ, तो यहाँ पे कंबस्टन आ गया, यहाँ पे Fusion. फ्यूजन आ गया, यहाँ पे Slag. और यहाँ पे रिडक्शन आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, है ना? A, Yes. A, B, then I have introduced C, then I have written C and D so that आपकी आंखों के सामने रहे, उसके बाद मैंने समरी बनाई है। तो रिडक्शन जोन, R for reduction. The temperature near the top is minimum. Here, the oxide of iron are reduced by carbon monoxide. इसमें कार्बन नहीं है क्योंकि कार्बन तो पाउडर है, वो नीचे जा रहा है। तो Fe2O3 मोनोऑक्साइड के साथ आयरन ऑक्साइड बना रहा है, Fe3O कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ FeO बना रहा है, एंड FeO कार्बन के मोनोऑक्साइड के साथ मिलके क्या बना रहा है? आयरन प्लस CO2। राइट? अगर आप भूल गए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपली ये लिखिए ना, आयरन प्लस CO2, आप FeO प्लस CO सीधा लिखिए ना, reduction. Okay. This region is known as reduction zone. The spongy iron, जो आयरन बन रहा है उसको स्पॉन्जी बोल रहा है, उसकी डेंसिटी ज्यादा नहीं है। In the reduction zone moves down slowly and melts in the नीचे वाले इस रीजन में, इसमें आयरन बना, इसमें आयरन पिघला। Okay, It sir. dissolves some carbon, silicon, phosphorus and forms the lower layer here, right? यहाँ पे उसने lower layer बना दिया। At the base of furnace, it is removed from trapping hole the time to time. धीरे धीरे करके आप इसको आयरन को यहां से निकाल सकते हैं, समझ आएगा? That is going to be the बेटे the 4 zones. रतन एक समरी में है, पहले क्या बना? combustion, fusion, slag formation and reduction. Font size यहाँ पे छोटा ही रखना पड़ना था because information was more. So Sir? नीचे से, हाँ बोलो। तो अगर ये ऊपर से नीचे सब आ रहा है तो फिर पहले रिडक्शन होगी, फिर स्लैग फॉर्मेशन होगी, फिर फ्यूजन होगी, क्योंकि आ तो ऊपर है। दिस इज है तो कलेक्टिव है ना, तो आपको तो नेट ये दिख रहा है ना, हमने आपको समझाने के लिए नीचे वाले जोन को कंबस्टन, उसको फ्यूजन, इसको स्लैग, इसको रिडक्शन। आप इमीडिएटली जब आप इसमें कुछ डालेंगे तो प्रोसेस शुरू नहीं होगी। आपने ये डाल दिया है, नीचे से हवा जब छोड़ी है तो हो सकता है 4-5 घंटे के बाद जाके रिएक्शन शुरू हो। एंड दैट इज द Okay. रीजन these blast furnace or these types of furnace, they cannot be stopped once they start working. Okay, Did you sir. understand? ये जब चलती हैं तो ये 10-10 साल, 20 साल, जितनी भी इनकी लाइफ है, ये कॉन्टिन्यूअस रन पे चलेंगी। अगर आप किसी भी समय इनको बंद कर देंगे, then the furnace is going to be destroyed. So जब आपने शुरू किया है तो वो रिएक्शन एकदम नहीं शुरू होगा, मतलब आपने उसमें चार्ज डाल दिया है। हो सकता है, मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि ये इंजीनियर्स देखेंगे, वो काम अलग है। तो वो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग धनबाद में है, इंस्टीट्यूट ऑफ आपकी माइनिंग की है, तो IIT है वो, तो वहां से ये इंजीनियर्स पैदा होते हैं। So it might take 10 hours or maybe 6 hours or maybe 24 hours. I do not know practically for the reaction to start. Once the reaction start, then it is always on the continuous run. But Okay, these sir. reactions are going to happen continuity में होंगे। बेटे, this is very important, extremely important topic, right? तो यहां से ये देखिए, हमने वो 5 रिडक्शन की हुई थी ना, तो 5 रिडक्शन, एक सेकेंड, हाँ आगे चल रहे हैं।
रिडक्शन बाय हाइड्रोजन, आई होप यू अंडरस्टैंड। पेज नंबर 62 मैं कहां से शुरू किया था? मैं यहां से शुरू किया था। मैंने अभी रिडक्शन विद ये कराई है बेटे आपको, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सेकंड पे जा रहा हूं, रिडक्शन विद सोडियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम पे। Reduction by hydrogen, because of inflammable nature of hydrogen, it is very sparingly used, मतलब बड़ी restriction से use किया जाता है। For example, molybdenum and tungsten are reduced by hydrogen to get tungsten and molybdenum. Process वही है, loss of oxygen, reduction. Reduction Okay. by aluminium. Many oxides like chromium, manganese are not reduced easily by carbon or monoxide. These are reduced by strongly electropositive metals such as aluminium. The process of reduction of a metal oxide with the help of aluminium is known as aluminothermy. For example, Cr2O3 plus aluminium, chromium plus alumina. Mn3O4 plus aluminium forms manganese and alumina. The above reaction is highly exothermic. Aluminium को ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा affinity है. So whenever it get a chance to combine with oxygen, वो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा कि ये जो मेटल होगा ये मोल्टन फॉर्म में आएंगे. This process is also known as Goldschmidt thermite process. और आपने शायद सुना हो, आप इसको वेल्डिंग पर्पस के काम में भी लाते हो, right? The metal produced is in the molten form. वेल्डिंग के लिए ये यूज होती है. रिडक्शन बाय सोडियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और हाइड्रोजन. Certain metal halides are reduced to pure metal by reduction with alkali or alkaline earth metals. For example, titanium, zirconium, etc. They are reduced by sodium or magnesium. This is used for chlorides. Titanium chloride plus sodium, vanadium chloride plus magnesium, titanium or vanadium plus respective chloride. Reduction with water gas. This is used for nickel oxide. अपने आप में ही क्वेश्चन है कि ये कैसे यूज होंगे. The nickel oxide is reduced to nickel by heating carefully in a tower at 600 Kelvin, in which a current of water gas is passed. Carbon monoxide and hydrogen both are reducing agent, और हम इससे निकल ऑक्साइड से निकल, निकल ऑक्साइड से निकल along with CO2 and बेटे water पैदा करते हैं. The last is again important, very important. Auto reduction, अपने आप में ही ये टॉपिक है. Auto reduction, auto reduction. Here the reduction, एक second here. Reduction can also be carried by auto reduction, in which the anion associated with metal helps in reduction. Helps in reduction. We do not need any reducing agent from outside. ये अपने आप ही होना शुरू हो जाता है. तो इसमें क्या किया जाता है? This is used for reduction of lead, mercury, copper. Please be focused here. No reducing agent is required. For example, अगर आपके पास HDS है, जब हम इसको रोस्ट करवा रहे थे, हम इसकी रोस्टिंग को पूरा नहीं होने देते, हम इसको बीच में ही रोक देते हैं. That is, now we have HGS and HGO. The sulfide helps in reduction of mercuric oxide. You will be getting mercury and SO2. The same thing is done for copper sulfide. जब हम कॉपर सल्फाइड की रोस्टिंग करवा रहे होते हैं, हम इस प्रोसेस को पूरा नहीं होने देते, हम इसको बीच में ही पार्टली कन्वर्ट करवा लेते हैं. Now sulfide
and oxide themselves react to form copper and SO2. This copper produced is known as blister. सुना हुआ है किसी ने? कॉपर. क्यों रतन? यहाँ पे क्या होता है, ये जो कॉपर बन रहा है इसके अंदर SO2 के ना बबल्स निकल रहे होते हैं. जैसे इमेजिन करो वॉल्केनो में से गैसेस निकल रही हैं, तो हम इसको रेते के बेड के ऊपर, रेत बिछी हुई है उसके ऊपर इसको उल्टा कर देते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस, धीरे धीरे करके कॉपर जो कि मोल्टन है वो ठंडा हो रहा है, पर उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड एस्केप कर रही है. वो सल्फर डाइऑक्साइड मेटल की मेम्ब्रेन के अंदर छुप के रह जाती है. सो दैट इज नोन एज ब्लिस्टर कॉपर. एट द सेम टाइम जहां पे तुम्हें कॉपर मिल रहा है, हम मदर नेचर को एक बड़ा गंदा गिफ्ट दे रहे हैं, SO2. This is responsible for many things, which is known as environmental pollution. Do you understand? So we are going to do it. Auto reduction. We will not go beyond this in this class, right? We will stop here and we will move from this point further in the next class. Okay, यहाँ पे रुकेंगे बेटे. कुछ पूछना चाहता है बेदी, कुछ बताना चाहता है तो बात कर. हाँ बेटे. नो सर. तो यहाँ से ना तो अगली क्लास में आगे लेके चलूंगा. तो मुझे उम्मीद है कि या अगली या उससे अगली में ये चैप्टर खत्म होना चाहिए. ठीक है. सो वी विल बी गोइंग फॉर प्यूरिफिकेशन. तो अगली क्लास में प्रोडक्शन बाय प्रेसिपिटेशन ले आऊंगा, पोलिंग and electro refining, zone refining, something like this, vapor phase, von Arkel method, something like this. And then the major topic will be coming thermodynamics. Most probably हम इसको परसों खत्म कर पाएंगे. I do not promise. Depends upon the situations. Chapter सारे अब छोटे छोटे हैं. कोई 3 लेक्चर से ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई भी लेक्चर है. चलो बच्चों, we will stop here and see you again day after tomorrow. Good luck. Thank you, Bye. sir. Thank you, sir. Take care. Bye, darling. Thank you, Good luck. sir. Thank you, sir. Okay. Bye, Seher. Signing off. Good luck.